can see 115 people right now and joining few more. How many of us doesn't have LinkedIn profile? कितने लोगों की LinkedIn profile नहीं है? If you don't have a LinkedIn profile, just write down no in the chat box. One, two, three, four, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So approximately 11 लोग, 11-12 लोग जिनकी LinkedIn पे प्रोफाइल नहीं है. Alright, including this 11 and the rest, I think all of us are there on Facebook or Instagram or WhatsApp. हम ये तीन and Twitter included, ये 4 सोशल मीडिया पे शायद हम लोग कहीं ना कहीं हैं. 4 में से मिनिमम 2 पे तो रहेंगे ही, WhatsApp एंड Facebook. कुछ लोग इंस्टा पे नहीं होंगे, कुछ लोग ट्विटर पे नहीं होंगे, बट मेजॉरिटी ऑफ अस आर ऑन एटलीस्ट 3 ऑफ दीज. What is more important is काफी सारे स्टूडेंट्स होंगे, काफी सारे एम्प्लॉइज भी हैं, दोज हु आर प्रोफेशनल, एंड कुछ लोग हैं जो सीनियर पोजीशन पे भी हैं. सो ये जो लिंक्डइन है वो एक somebody's mic is on. लिंक्डइन है वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सोशल मीडिया तो है, बट उससे भी ऊपर ये प्रोफेशनल एक वर्चुअल सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है. एंड दैट्स व्हाई हमारा वर्चुअल प्रोफेशनल प्रेजेंस होना बहुत जरूरी है. इंस्टाग्राम एंड फेसबुक इज पर्सनल, it is not formal, it is informal, but LinkedIn is out professionally managed social virtual site. And that's why we should be very careful about creating our profile on LinkedIn. We are also into a business of recruitment. We do recruitment for organizations, and we have observed, we have seen, in fact, we have recommended to our clients कि आप जब भी कोई सीनियर पोजीशन पे या जिसका भी सैलरी पैकेज इज मोर देन 12 lakhs पर एनम है, उनको अगर रिक्रूट कर रहे हो तो गो थ्रू देयर लिंक्डइन प्रोफाइल्स टू, with whom they are interacting, what are their interactions, how they are taking their jobs, what are their contributions in their organization and job. So ये सारी ही चीजें आपको you will see from the LinkedIn profiles. And let's look at a few aspects कि हम क्या ऐसा करें ताकि हमारा प्रोफाइल इफेक्टिव हो, हमारा प्रोफाइल क्वालिटेटिव हो, हमारा प्रोफाइल देख के if we are job seekers, if we want to shift from one job to another, if we want to change job, then हम कैसे हमारे प्रोफाइल को इफेक्टिव बना सकें. ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर हम एंटरप्रेन्योर्स है, हमारा बिजनेस है, तो हम ये भी देखेंगे कि किस तरह से प्रोफाइल को इवैल्यूएट करना चाहिए ताकि हम अच्छे कैंडिडेट को पिकअप कर पाए फ्रॉम दिस सोर्स. दिस इज ऑल्सो ए ग्रेट सोर्स फॉर रिक्रूटमेंट. सो the first and the foremost thing that comes a profile picture, and this works everywhere. I will directly go into the topic because इसमें बहुत सारे question answers रहेंगे. So briefly we will first deal with the aspects जिसके ऊपर हमें सबसे ज्यादा focus करना है, and then we will be in a conversation mode. आप आपके queries बताना and we will find out the solutions. So what kind of a profile picture should be there in LinkedIn? Instagram, Facebook और कोई भी सोशल मीडिया पे कुछ भी चलेगा. Anything will do, but on this anything will not do. On LinkedIn we need to have a photograph which is close up, where you are looking at the camera, you are not looking at the side or on any other side, or you are talking with somebody or your back is being seen in the photograph. No, it should be directly in the photograph, so your full face should be visible. Photo definitely should be a smiling one, no expressions, no other expressions are required. With a simple plain background which is more suitable, maybe a white color or any other color, but a plain background. The photo should be in the professional attire.
It can be blazer, it can be formal shirt, it can be with tie, it can be with koti, it can be in sari, it can be in normal salwar kameez, but a decent one, which we generally wear in the office. No jeans and a t-shirt kind of a photo. In fact, मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है. There are two different types of photograph. One with some adventurous activity and another holding blazer in the hands. That's also not a formal photograph. And that's why we need to be very clear as to what are we keeping as our profile picture. This is our DP. No filters on the picture. कुछ अलग अलग विंटेज का आपने इफेक्ट दे दिया या कोई कलर इफेक्ट दे दिया. नो नीड. नेचुरल लाइट में, नॉर्मल सनलाइट में निकाला हुआ फोटो इज एडवाइजेबल. नो सेल्फीज. Let a person or a friend clicks your photograph and you use that photograph. No sunglasses. These are few things. If you see a profile picture जो मैंने रखा है on the extreme right side corner पे जो नीचे है, that is I think an ideal way of putting a photograph where there is nothing else in your photograph with the formal attire. Now, those who are having an organization, आपके कंपनी का अकाउंट और आपका अकाउंट कॉमन है. जनरली ट्रेनर्स ऐसा करते हैं, फ्रीलांसर्स ऐसा करते हैं, ग्राफिक डिजाइनर फ्रीलांसर्स जो रहते हैं वो भी ऐसा करते हैं. दे कैन हैव एक कंपनी का लोगो ओवर देयर, बट advisable is to keep our own photograph first, create a page of our organization and put a logo over there. This is advisable. If you see in the photograph, in the picture, this is a screenshot of my LinkedIn and it looks like this. हमारा फोटो जितना दिखता है उतना पूरा नहीं आता है, वो थोड़ा कट जाता है. And while affixing this photograph, while adding this photograph, we have to ensure that we crop a right part. ये आपको पता है, ऐसा नहीं है कि ये आपको नहीं पता है. But I'm just saying it because so many profile pictures we have seen जिसमें वो professional look नहीं आता है. That's why people start rejecting from this point onwards. This is the first contact point. आप यहाँ से दिखते हो, so यहाँ से लोग reject करना शुरू करते हैं. So keeping a right photograph. Then comes the background picture. Background picture should be a good background image. Don't keep it ब्लू कलर का जो ऑटोमेटिक आता है. लिंक्डइन का प्रोफाइल हम जब बनाते हैं तो एक ऑटोमेटिक ब्लूइश शेड में एक फोटोग्राफ बिना का सीधा साधा पैनल जैसा दिखने वाला एक बैकग्राउंड दिखता है with few dots. Don't keep that. It is a normal default picture. It should be related to your work. You can create this kind of background and put it over there. And of course, it should look professional. Like I am a corporate trainer, I am a management consultant, and I have put a quote that go confidently in the direction of your dreams. And because I am a trainer, so I can put some background like this. I can change it also. So you can choose this background according to your requirement, according to your professional background. This is second. How to change? We'll get into that. एक बार ये एक छोटा सा प्रेजेंटेशन का पार्ट खत्म हो जाए, we'll go to the live profile and we'll see कि कैसे चेंज कर सकते हैं, क्या चेंज कर सकते हैं. Third comes the headline. This is important. This is the main point जहां से लोग आपको कैप्चर करना शुरू करेंगे. अगर ये हेडलाइन सही है तो आपकी प्रोफाइल इजीली कैप्चर होना शुरू होगी. Now, what it should include? Job title, name means a designation or a position, name of your company, keywords जो आप कर रहे हो वो, and zing factor. I tell you what it is. If you see, मेरा नाम है, नाम के नीचे corporate trainer, then NLP practitioner, then management consultant. Now these are the keywords. क्योंकि लोग जब ढूंढते हैं तो क्या ढूंढते हैं? I need a corporate trainer, or I need somebody who is an NLP practitioner, or I need somebody who is a management consultant. So ये तीन चीजें they work as a keyword. My company's name is also there, Ample Private Limited, and
What is zing factor? That is helping people to create effective PPT. Sharing something which is extra, sharing something which is unique about you is something that is a zing factor. So अगर आप कुछ explicitly या कुछ बहुत distinctly अलग कर रहे हो, you write down there. So people may search from this line. Then comes the summary. यहां से आपकी प्रोफाइल तो कैप्चर हो गई, बट उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट आता है हाउ इफेक्टिवली वी हैव पोर्ट्रेट आवर कैरेक्टर एज ए समरी. क्रिएट ए गुड समरी अबाउट योरसेल्फ. जनरली ये क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरव्यू में, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ. ये समरी वही क्वेश्चन का आंसर है. टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ with respect to this LinkedIn profile. So create it as good as you can. Create a strong summary. Include everything which is very important. Also the keywords. I'll show you कि अच्छा summary क्या होता है. And apart from that, what all that we will need to be very careful about is skills, activities, experience, education, certification. अगर हम कोई वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ हैं तो वो ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपीरियंस हम उसमें शेयर करेंगे. कुछ स्किल्स एंड एंडोर्समेंट हैं. देयर आर रिकमेंडेशंस, अकम्प्लिशमेंट्स, इंटरेस्ट एंड कनेक्शंस. नाउ दीज आर ए परफेक्ट ब्लेंड ऑफ इन इफेक्टिव प्रोफाइल. अगर इस सबको हमने सही तरीके से सेट किया है तो वो हमारा परफेक्ट प्रोफाइल है. आई एम मूविंग टू ए लाइव प्रोफाइल नाउ, क्योंकि हम मुझे ये बताना जरूरी था कि हम कौन सी चीज है जिसपे सबसे ज्यादा फोकस करेंगे. तो नाउ वी विल गेट इनटू ए लाइव प्रोफाइल. कैन यू सी ए लाइव प्रोफाइल? आपको स्क्रीन पे मेरा प्रोफाइल दिख रहा है? You can write down. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Right. Yes, ma'am. All right. और LinkedIn के दो वर्जन है. एक है जो नॉर्मल हमारे पास है जो हम यूज कर रहे हैं, एंड अनदर इज पेड वर्जन व्हिच इज जनरली प्रीमियम वर्जन है, जनरली बीइंग यूज्ड बाय द कॉर्पोरेट्स फॉर रिक्रूटमेंट पर्पस. So we are not right now talking about this premium profile because right now if we create this profile perfect, then हमारे chances recruit होने के बढ़ जाएंगे. And right now the purpose is to create an effective profile. जैसे ही आप अपने प्रोफाइल में जाओगे तो सबसे पहले जब आप ऑन करते हो you will see this kind of a screen. When we log in we see this kind of a screen. यहां से हमें हमारे नाम पे क्लिक करना है ताकि हम हमारे पेज पे जाए जहां पे हमें कुछ भी एडिट करना है वो हम कर सकते हैं. फर्स्ट थिंग कम्स फोटोग्राफ. जैसे ही आप फोटोग्राफ पे क्लिक करोगे, अपने लॉगिन किए हुए अकाउंट से क्लिक करोगे तो ऐसा कुछ पिक्चर आपको दिखेगा. हियर यू कैन चेंज द फोटोग्राफ. यहाँ पे आपको लग रहा है कि आपका फोटो सही तरीके से क्रॉप नहीं हुआ है तो आप यहाँ पे क्रॉप कर सकते हो उसको. अगर बहुत बड़ा फोटोग्राफ है यू कैन जूम इट. अगर कोई एक छोटा सा पोर्शन उसमें से लेना है उसको जूम इन जूम आउट कर सकते हैं. अगर आपका फोटोग्राफ कहीं पे स्लाइड टिल्ट है तो आप उसको स्ट्रेट भी कर सकते हैं. क्योंकि ये फोटो स्ट्रेट है तो आई डोंट नीड टू स्ट्रेट इट वंस अगेन. इसे अगर मुझे टिल्ट करना है तो मैं कर सकती हूँ, बट मुझे जरूरत अभी है नहीं. I can add filters from this, but it is not advisable. Use the original properly clicked photograph. You can adjust. अगर आपका फोटो सही नहीं है तो यहाँ से आपके पास ये सारे ही फिल्टर के ऑप्शंस हैं, आप यहाँ से वो ऑप्शंस चेंज कर सकते हो. किसको प्रोफाइल पिक्चर्स दिखाने हैं तो आपके पास यहाँ पे विजिबिलिटी का ऑप्शन है. आई एडवाइज दैट यू कैन क्लिक, क्योंकि मैंने ये इसलिए रखा था ताकि मैं आपको बता सकूं कि कोई भी पर्सन मेरी प्रोफाइल सर्च करेगा तो अगर मैंने सिर्फ योर कनेक्शन रखा होता तो सिर्फ और सिर्फ जो मेरे फर्स्ट कनेक्शन फर्स्ट सर्कल के लोग हैं सिर्फ उनको ही मेरा प्रोफाइल पिक्चर दिखता. अगर मैंने नेटवर्क लिखा होता या तो ऑल लिंक्डइन मेंबर्स लिखा होता तो जो मेंबर लिंक्डइन के मेंबर्स हैं जिनका रजिस्ट्रेशन करा हुआ है उन्हीं को मेरा प्रोफाइल पिक्चर दिखेगा एंड मेरे नेटवर्क में जितने लोग हैं उनको दिखेगा. बट इफ इट इज पब्लिक
it can be seen by anybody. If somebody searches me on Google, Jyoti Maru करके search किया, and if it is a public profile, then it is visible to all. So I have shifted. अगर मुझे फोटो चेंज करना है, कभी एक फोटो रखा है, काफी टाइम हो गया, आई वांट टू चेंज माय फोटोग्राफ, आई कैन चेंज इट फ्रॉम हियर. द मोमेंट आई स्टार्ट चेंज पे अगर मैंने क्लिक किया है तो आई हैव टू ऑप्शंस. आई कैन यूज द कैमरा, अगर आपके पास फोन है तो इमीडिएटली आप इसको क्लिक कर सकते हो, और यू कैन अपलोड योर फोटोग्राफ. आई डोंट वांट टू डू एनी ऑफ दिस, सो आई एम नॉट डूइंग इट राइट नाउ. वंस अगेन गोइंग देयर, अगर हमने जो कुछ भी चेंज किया है हमें उसको सेव करना जरूरी है. नीचे जाके सेव फोटो, अनलेस वी सेव इट, वो सेव नहीं होगा. नाउ द फोटो इज सेव, and whatever corrections that we have put, it will be reflected within 1 to 2 minutes. It will take its time to reflect. Then comes, this is the background picture we were talking about. हम इसकी बात कर रहे थे. क्या हमें ये प्रोफाइल पिक्चर को एडिट करना है? Yes or no? If we want to add it, we need to go to edit option. वहां पे जाके, and where is edit option? On the profile, ये जो लाइन पेंसिल दिख रही है, दिस इज एन एडिट ऑप्शन. यहाँ पे जाना है. यहाँ पे हमें साइज दिखता है 1584 बाय 396 पिक्सल का रिकमेंडेड साइज है. अगर आपका बैकग्राउंड इमेज आप बना रहे हो, मे बी यू आर यूजिंग रेडीमेड फोटोग्राफ, तो भी आपको ये साइज का लेना है. या आप किसी ग्राफिक डिजाइनर के पास डिजाइन करवा रहे हो तो उनको पता होगा, वो आपको यही साइज में डिजाइन करके देंगे. और यहाँ से हम आप उसको चेंज कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने ऑलरेडी किया हुआ है. द सेम फीचर्स, आप उसको स्ट्रेट कर सकते हो, कलर कर सकते हो, फिल्टर कर सकते हो. यहाँ पे देयर आर नो बार, आप यहाँ पे फिल्टर इमेज दे सकते हो, आप यहाँ पे उसका कोई भी कलर टोन्स चेंज कर सकते हो, एंड देन यू कैन यूज इट. सो सेव कर दिया. नाउ योर फर्स्ट नेम सही लिखना है, जो हम नॉर्मली यूज कर रहे हैं सब जगह पे वो लिखना है. नाउ many times people have more than one name, they are known with something else. So if you want to show something else as your name, you can have a former name. अगर आपका कोई और नाम भी है जिससे आप जाने जाते हो लोग में, तो वो भी आप ऐड कर सकते हो. What I was talking about the headline, you can write here, you can change here. ये जो पोर्शन है ये हेडलाइन का पोर्शन है. आप यहाँ पे अपने हेडलाइंस को सही तरीके से लिख सकते हो. ये आपका वन लाइनर है, क्रिस्पी. अगर एक लाइन में मुझे ज्योति को डिफाइन करना है तो शी इज अ कॉर्पोरेट ट्रेनर, एनएलपी प्रैक्टिशनर, मैनेजमेंट कंसल्टेंट एट एम्पर प्राइवेट लिमिटेड, एंड शी डज ए वेरी गुड इफेक्टिव पावरपॉइंट स्लाइड्स. दैट्स इट. अगर किसी को इतने ब्रीफ में बताना है, दैट इज वेयर वी राइट हेडलाइंस. आपका करंट पोजीशन आप लिखेंगे. अगर आप स्टूडेंट है तो स्टूडेंट ऐड करके भी लिख सकते हैं, आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी का नाम. मल्टीपल कंपनी में है आप तो मल्टीपल पोजीशन हम नीचे देखेंगे जब हम एक्सपीरियंस की बात करेंगे तब. देन एजुकेशन की बात है जो आपके इंट्रोडक्शन में आएगा. नाउ व्हेन आई से समथिंग दैट आई राइट हियर विल बी रिफ्लेक्टेड इन माय फर्स्ट पैनल. जो आपको ऊपर पैनल दिख रहा था उसमें द बेसिक डिटेल्स, एंड यू कैन राइट आपके कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन, आपका वेबसाइट है या आपके ईमेल आईडीज हैं, आपका ट्विटर का अकाउंट है, तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो. योर डेट ऑफ बर्थ, इफ आई शो यू, आपका लिंक्डइन का प्रोफाइल का यूआरएल है जो हम हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स में यूज करते हैं. मे बी इन आवर ईमेल्स, मे बी आवर ईमेल में, या तो हम हमारे विजिटिंग कार्ड्स में कहीं ना कहीं यूज करते हैं. आपकी कंपनी का यूआरएल आप यहाँ पे लिख सकते हो. यू कैन चेंज, अगर आपके पर्सनल प्रोफाइल, आपका पर्सनल वेबसाइट है तो यू कैन ऐड योर पर्सनल प्रोफाइल एज योर वेबसाइट और योर कंपनीज प्रोफाइल, और दोनों ही है तो आप दोनों को भी ऐड कर सकते हो. यू मे ऐड योर नंबर्स. इट इज एडवाइजेबल, नोबडी इज यूजिंग दीज नंबर अदरवाइज. तो अभी हम मोबाइल नंबर शेयर करें उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं रहती हैं. अगर हमारे पास 2 मोबाइल है और प्रोफेशनल मोबाइल है तो हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं. एड्रेस जनरली इज नॉट रिक्वायर्ड, बट इफ यू वांट टू कीप, यू कैन कीप इट. You can add your Twitter account. Twitter and LinkedIn are linked, so automatically वो दिखेगा, and you can add your date of birth.
Now when I said, if I keep few things, मुझे मेरा नाम दिख रहा है, हेडलाइन दिख रही है, मेरा लोकेशन दिख रहा है, मेरे कंपनी का नाम दिख रहा है यहाँ पे, एंड वेयर आई हैव स्टार्टेड वो भी दिख रहा है. सो आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सबसे पहले जब भी आप अगर लॉग इन नहीं किए हो और फिर भी आप किसी और को सर्च करते हो, तो आपको ये बेसिक इंफॉर्मेशन गूगल पे दिखता है. एंड दैट्स व्हाई क्रिएटिंग दिस पर्टिकुलर प्रोफाइल वेरी इफेक्टिवली इज वेरी इंपॉर्टेंट. Then we move to the next. I was talking about the summary. Here there are no limitation. आपके पास limitation नहीं है यहाँ पे characters के, जो कि headline में है. यहाँ की जो headline है इसमें character का limitation है. आप इससे ज्यादा characters use नहीं कर सकते हो. But in summary, that is about you, यहाँ पे character के limitation नहीं है. You can write as much as you want. आप यहाँ पे brief में लिख सकते हो, आप यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव लिख सकते हो, बिकॉज दिस इज व्हाट यू पोर्ट्रे योरसेल्फ. लोग ये चीज पढ़ते हैं व्हेन दे वांट टू गेट इन टच विद यू, सो यू कैन राइट एवरीथिंग अबाउट योरसेल्फ. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर हम बहुत अच्छा नहीं लिख पा रहे हैं तो आई एडवाइज कि हम किसी से ये पोर्शन को बहुत अच्छे से लिखवाए और प्रोफाइल पे रखें. देयर इज नो हार्म. वी कैन आस्क एक्सपर्ट्स, वी कैन आस्क पीपल हु राइट वेल टू राइट दिस. सो यहाँ पे क्या क्या चीजें इंक्लूड करेंगे? आपके बेसिक प्रोफाइल जो आप कर रहे हो वो, अगर कोई सर्टिफिकेशन या अचीवमेंट आपने लिया है तो वो भी आप इंक्लूड कर सकते हो. लिटिल बिट अबाउट योर ऑर्गेनाइजेशन, योर वर्क. जैसे 700 प्लस प्रोग्राम्स मैंने ऑलरेडी कर दिए हैं. कुछ कंपनीज के नाम मुझे शेयर करने हैं तो मैंने वो भी किए हैं. सम अचीवमेंट्स and little bit about myself. Now, purpose of doing this, writing in this particular area is, अगर मेरा प्रोफाइल पूरा कोई नहीं भी पढ़ रहा है तो भी उसको इतने से पता चल जाए कि मेरे प्रोफाइल में क्या क्या चीजें हैं. One very good thing that LinkedIn has added is features. काफी ग्राफिक डिजाइनर्स होते हैं, कंटेंट राइटर्स होते हैं, कुछ होते हैं जो वीडियो बनाते हैं. There are few people who create websites. So, or people like us who are trainers, जिनके पास फिजिकल प्रोडक्ट नहीं रहता है दिखाने के लिए, so they can display their artwork. And for that, what we have here is a featured का option. Now, what is this? कि आपने जो क्रिएशंस बनाए, मे बी इन द फॉर्म ऑफ वीडियो, मे बी इन द फॉर्म ऑफ image, maybe in the form of PowerPoint presentations, Word file, PDF file, any file, or even your links, you can share here. You can share your YouTube links also. Like for example, Rewind and Relive is a YouTube video जो मैंने यहाँ पे लिंक उसका अटैच कर दिया है, ताकि जो भी मेरा LinkedIn प्रोफाइल देखे उसे भी पता चले कि I am also available on LinkedIn and on YouTube. Then one more video on conflict management. Then there is a PDF, which is a training material on conflict management, which is also added. If you go, हमारे channel जो Ample का channel है उसका भी link है, so that people can go from here also. And then there is one more module on effective communication. All this I have. अब मुझे कुछ और ऐड करना है तो मैं कैसे करूं? सिंपल है, यहाँ पे प्लस का साइन है. जैसे ही मैं प्लस का साइन क्लिक करती हूँ तो मुझे पोस्ट दिखाता है. आई कैन ऐड पोस्ट, और आई कैन राइट एन आर्टिकल, और आई कैन ऐड कोई लिंक है, जैसे यूट्यूब हो गया, या तो आपका कोई वेबसाइट का लिंक है, या आपके ब्लॉग का लिंक है, आप वहां पे ऐड कर सकते हैं. एंड योर मीडिया. सो आई जस्ट शो यू. रिस्ट इज इजी, बट मीडिया में जाकर यहां से हमें कुछ भी जो हमें अपलोड करना है, एनीथिंग दैट वी वांट टू अपलोड, लेट्स से मेकिंग इफेक्टिव लिंक्डइन प्रोफाइल का जो पीपीटी है वो मुझे ऐड करना है. सो आई हैव सिलेक्टेड दैट. इट इज एडिंग. इट विल टेक सम टाइम. आपके फाइल की जो लेंथ है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि कितना टाइम लेगा. सो वो ऐड करेगा. जैसे ही आप देखोगे, जैसे वो ऐड करेगा ना, तो यहाँ पे टाइटल आ जाएगा अचानक से, जो आपने आपके फाइल का टाइटल रखा है. सो यू डोंट हैव टू टाइप सेपरेटली, और इफ यू वांट टू चेंज, यू कैन चेंज.
and little bit a description about what are you putting, what is your artwork on, आप उसका एक्सप्लेनेशन दे सकते हो. एंड देन जैसे ये यहाँ पे अपलोड हो जाएगा तो ये सेव वाला जो बटन है ये ब्लू हो जाएगा एंड यू कैन सेव इट फ्रॉम हियर एंड यू कैन मूव फॉरवर्ड. आई जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड कि अगर ये हो जाए. नो प्रॉब्लम. बट यहाँ से हम ऐड कर सकते हैं. ठीक है, हमने ऐड कर दिया बट फिर हमें याद आया कि कुछ और भी एडिट करना है. सो व्हाट यू कैन डू इज once again you can go to this edit option. Edit में जाइए. You will see all your featured items और हर item का आपको बाजू में content दिखेगा. And every item will have two options, edit and delete. So you can edit the same. जब आप edit करेंगे तो आपको ये सारी चीजें आप edit कर पाएंगे. So I want to still add by Nirmal Parekh. तो मुझे ये एडिट करना रह गया था. सो आई हैव एडेड बाय निर्मल पारेख एंड देन लिटिल बिट अबाउट इट एंड देन सेव. सो जैसे ही मैंने सेव किया रियल टाइम चेंज हो गया और वो आ गया. इन दिस वे वी कैन चेंज एंड देन डन. सो दिस इज फीचर. ये आपका काम दिखाता है. हम चाहे कितना भी लिख ले बट अगर हमारा काम हम दिखा सकते हैं देन देयर इज नथिंग लाइक इट. हमें कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, किसी को हमें यूट्यूब की लिंक भेजने की जरूरत नहीं है. एवरीथिंग इज देयर इन वन प्रोफाइल एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ लिंक्डइन कि यहाँ पे आपका सब एक्यूमुलेट करके आप एक जगह से प्रोफेशनली एक प्लेटफॉर्म पे खड़े रह सकते हैं. नाउ दिस इज योर डैशबोर्ड. दिस इज टू यू ओनली. ये किसी और को नहीं दिखेगा. दिस इज प्राइवेट टू यू. बट यहाँ पे आपको लास्ट एक वीक में कितने लोगों ने आपका प्रोफाइल व्यू किया है, आपके पोस्ट को कितने लोगों ने देखा है, द लास्ट पोस्ट दैट यू हैव डन. सो टुडे जस्ट बिफोर हाफ एन आवर आई पोस्टेड वन पोस्ट. तो उसको मैक्सिमम अभी तक 14 व्यूज मिले हैं एंड कितने लोगों ने आपको सर्च किया है. सो दैट इज 24 इन लास्ट 12 आवर्स टाइम. सो यहाँ पे आपको छोटा सा एक एनालिटिक्स दिखेगा. This is a new feature that we added little before 6 months or so. शायद एक साल हुआ है. Career advice. Now, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है. Looking at your profile, people have there are people who can advise on our career. So looking at our profile, they can advise. अगर आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो you can see who can advise me. उसके कुछ नाम आएंगे. मेरे प्रोफाइल को रिलेट करते हुए कुछ नाम आएंगे जिनके साथ मैं बात कर सकती हूँ, जिनके साथ मैं कम्युनिकेशन में आ सकती हूँ एंड दे कैन सपोर्ट मी कि मेरे करियर में मुझे आगे कैसे जाना चाहिए. एंड वी कैन स्टार्ट कन्वर्सेशन. लाइक फॉर एग्जाम्पल समबडी फ्रॉम नेटाफिम कॉल्ड मिस्टर अमित करंडेकर. अब उनसे मुझे कनेक्शन में आना है, मुझे उनसे बात करनी है. आई कैन स्टार्ट कम्युनिकेटिंग विद हिम एंड यहाँ पे आपको एक ऑटो ड्राफ्ट मैसेज मिलेगा और यू कैन सी ए ड्राफ्ट मैसेज. उसके बाद आप अपने हिसाब से भी कुछ इसको एडिट कर सकते हैं. व्हाटएवर यू वांट टू टॉक विद दैट पर्सन यू कैन डायरेक्टली कनेक्ट विद दैट पर्सन. सो आप इस तरह से अपने करियर के बारे में हमारे सर्कल में जो सीनियर पर्सन हैं जो हमें गाइड कर सकते हैं उनके साथ भी हम जा सकते हैं. सो दैट इज गोइंग बैक एंड शोइंग यू योर डैशबोर्ड. उसके अंदर करियर एडवाइस अगर आप ऑन रखते हो तो आपको ये मिलेगा और नीचे लिखा है गेट करियर एडवाइस बाय कन्वर्सिंग विद अदर लिंक्डइन यूजर हु आर लीडर इन आवर फील्ड. जो हमारे फील्ड के लीडर्स है, जैसे HR इज माय फील्ड. सो करंडिकर सर इज at the highest level in Netafim, so he can advise me on this. Then there are activities. हम बहुत सारे टाइम हो जाता है जब हमारे एक प्रोफाइल पे तो हमें ये नहीं पता होता है कि हमने क्या क्या लिंक्डइन पे किया है. Now this is a feature which will help us to share ideas कि हम यहाँ पे एक्टिविटी देख सकते हैं हमने क्या क्या एक्टिविटीज की हैं. So starting from the recent activities to the last activity we can see. So before 1 hour
I have posted this. 31 people have seen this. वहां पे नीचे आपको छोटा सा एक इंफोग्राफिक भी दिखेगा. This is an analytic, if you can see this. आगे जाएंगे. 4 दिन पहले मैंने कुछ लाइक किया था. जो हमारी कंपनी है उसकी एक पोस्ट है जिसको मैंने लाइक किया था, वो यहाँ पे दिखाएगा. So these are the likes that I have done. I have commented on somebody's post. मुझे वो भी दिखाएगा. Then I have uploaded the video. वो भी मुझे दिखेगा. Everything that I have done with my LinkedIn profile मुझे यहाँ पे दिखेगा. So in a way, this is a storage space also. कुछ चीजें जब हम यहाँ पे पोस्ट करते हैं तो वो यहाँ पे स्टोर हो जाती हैं and we can go back. हमारे सारे ही पोस्ट हम यहाँ से देख सकते हैं. 1 वीक पहले का भी मिलेगा, 1 साल पहले का भी मिलेगा. अब जितना नीचे जाओगे यू कैन सी एवरीथिंग. एंड यहाँ से आपको एनालिटिक्स भी मिलेंगे कि कितने लोगों ने कौन से प्रोफाइल पे व्यू किया है, आपने क्या क्या चीजें डाली है. जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस वॉज वन ऑफ द ट्रेनिंग प्रोग्राम्स दैट आई डिड, और यहाँ पे लाइक्स, कमेंट्स एंड व्यूज आई कैन सी. सो आई कैन रिकलेक्ट माई पोस्ट, माई मेमोरीज जो मैंने यहाँ पे स्टोर करी है. सो दिस इज ए गुड फीचर. ऑलराइट, ये हो गया एक्टिविटीज. एक्टिविटीज ऑल्सो शो अस व्हेन वी गो टू सी ऑल, हमारे फॉलोअर्स दिखाते हैं. सो एज ऑफ नाउ फॉलोअर्स 247, ये मेरे फॉलोअर्स. माय एंडेवर शुड बी मेरे फॉलोअर्स बढ़े ताकि मैं जितने भी पोस्ट करती हूँ वो पोस्ट स्प्रेड हो. हमारे पास फेसबुक में लिमिटेशन है, 5000 से ऊपर नहीं होता है, उसके लिए हमें पेज क्रिएट करना पड़ता है. बट यहाँ पे ऐसे कोई लिमिटेशन नहीं है. वी कैन हैव एज मेनी कनेक्शंस एज वी वांट, एंड दैट्स व्हाई हमारे सर्कल के, हमारे फील्ड के हमें काम आ सके वैसे लोगों के कनेक्शंस एंड फॉलोइंग्स हमें बढ़ाने चाहिए. वो कैसे करेंगे, आई विल शो यू दैट आल्सो. नाउ कम्स द इम्पोर्टेंट पार्ट, एक्सपीरियंस. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज इसलिए है कि लोग इसको स्टडी करते हैं. आप चाहो तो आप इसमें आपका पूरा सीवी लिख सकते हो. यहाँ पे आप आपके जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आपने क्या काम किया है, आपके KRAs क्या थे, वो सारी चीजें यहाँ पे लिख सकते हो. हाउ कैन यू डू इट? सो एग्जिस्टिंग है उसमें मैं एक बार एडिट में जाके आपको दिखाती हूँ. आपको टाइटल लिखना है. सो सीनियर मैनेजर, एम्प्लॉयमेंट टाइप फुल टाइम, कौन सी कंपनी है तो एम्पल प्राइवेट लिमिटेड. अब आप जो भी कंपनी में काम कर रहे हो, अगर उस कंपनी का पेज लिंक्डइन में बना हुआ है तो आपको इस तरह से लोगो भी दिखेगा ना. एम्पल का पेज ऑलरेडी बना हुआ है. सो आप जैसे ही मैं एम्पल टाइप करती हूँ तो वहां पे बाजू में छोटा सा लोगो आ जाता है. आपकी कंपनी का भी लोगो इस तरह से आ जाएगा. लोकेशन लिखना है, आप कब से काम कर रहे हो वो भी आपको लिखना है. एंड आपको प्रमोशंस मिले हैं तो आप वो प्रमोशंस को भी ऐड कर सकते हो. सो आप इसको चेंज कर दीजिए, यहाँ पे ऐड कर दीजिए, एंड यू कैन राइट समथिंग अबाउट योरसेल्फ. आप और ज्यादा लिखना है तो लिख सकते हो. आई हैव नॉट रिटन बिकॉज आई हैव ऑलरेडी इंक्लूडेड. मैंने बहुत सारी चीजें मेरे समरी में लिखी है बिकॉज आई एम अ कॉर्पोरेट ट्रेनर. मेरा स्टैंडर्ड KRA है तो ज्यादा मैंने कुछ चेंज यहाँ पे नहीं लिखा है. सो मैंने उसको सेव कर दिया. Now, when I was a lecturer in a college, वहां पे कुछ लिखा था. So it was also, if it was a part-time employment, कंपनी का नाम, because the page was not registered, you cannot see a logo. लोकेशन मैंने अभी नहीं लिखा है. मेरा जॉब का स्टार्ट डेट और एंड डेट ऑलरेडी मैंने डाल दिया है. एंड आई हैव रिटन समथिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर जॉब. जो लोग अपने फील्ड में CV में हम जो चीजें भी लिखते हैं वो हम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर सकते हैं. ये so I was doing my articleship, and उसके बाद जब मैं ऑडिट असिस्टेंट के लिए काम करती थी, at that point of time I have done something.
हम इसमें जितना ज्यादा लिखेंगे कहीं ना कहीं उतना बेटर हमारा प्रोफाइल बनता जाएगा. सो यू कैन राइट दैट वे. देन कम्स एजुकेशन. इट इज एडवाइजेबल कि आप आपके एजुकेशन सेक्शन को बहुत अच्छे से लिखे. आपके पास जो सर्टिफिकेट्स हैं, आपके पास कुछ फोटोग्राफ्स हैं, आपको कोई मेडल मिला है, तो आप उसके फोटोग्राफ, सर्टिफिकेट्स, पॉसिबल है तो मार्कशीट यहाँ पे शेयर करें ताकि एवरीथिंग इज देयर. सो यूनिवर्सिटी का नाम आ गया, क्या किया है, एमबीए किया है, और उसमें गोल्ड मेडल मिला है, तो गोल्ड मेडल यहाँ पे शो किया है. एंड गोल्ड मेडल का मैंने फोटो अपलोड किया है. I can also add my certificates here. So I'm also in a process of making it better. So I can add that. कैसे ऐड करेंगे? प्लस यहाँ पे एडिट में जाना है, ऑलरेडी बिकॉज ये है तो एडिट में जाना है. उसके बाद यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में अगर कुछ मुझे लिखना है, जनरली एजुकेशन में डिस्क्रिप्शन में लिखने की जरूरत नहीं होती है. एंड इन अपलोड्स यू कैन अपलोड ए फोटोग्राफ. अगर आपका कोई फोटोग्राफ है तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हो. अगर आपका कोई चैनल है, आपके वेबसाइट पे कहीं पे ये फोटोज हैं, तो वो लिंक आप यहाँ पे अटैच कर सकते हो. आपका प्रेजेंटेशन है तो आप उसको अटैच कर सकते हो. जैसे मैंने मेरा बैचलर किया था एचए कॉलेज में से, जो अहमदाबाद में है, तो आई हैव डन सो मेनी थिंग्स ओवर देयर, जहां पे मेरे पास लिखने के लिए बहुत कुछ चीजें थी. तो आई हैव रिटन द नेम ऑफ द कॉलेज, डिग्री का नाम लिखा, स्पेशलाइजेशन लिखा, टाइम लिखा, कौन सा क्लास मिला वो लिखा, मेरे एक्स्ट्रा एक्टिविटीज को मैंने लिखा. एंड इन डिस्क्रिप्शन आई हैव रिटन ऑल द एक्टिविटीज दैट आई हैव डन इन माय कॉलेज. सो व्हेन मैं डिटेल में ये क्या लिखा है उसके डिटेल में नहीं जाते. आपको आपके हिसाब से ये चीजें लिखनी है. हमने कुछ कॉन्फ्रेंसेस अटेंड की है या पेपर प्रेजेंटेशन किया है, कोई मेजर कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है, इंडस्ट्रियल विजिट्स किए हैं. आप जैसे स्टूडेंट है तो आप ये सारी चीजों को अभी ये इंक्लूड कर सकते हैं यहाँ पे. एंड यू कैन राइट डाउन अबाउट योर स्कूल ऑल्सो. दिस इज वन मोर वे ऑफ कनेक्टिंग विद आवर ओन पीपल. जो हम स्कूल में साथ थे, हम कॉलेज में साथ थे, और इसलिए ये लिखना जरूरी है. सो व्हाट हैपेंस इज व्हेन आई क्लिक हियर मेरे यूनिवर्सिटी पे, तो मुझे ये चीज दिखेगी कि यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले कितने लोग थे एचआर में. So I can see 103 alumni who studied HR and services from the same university. और मुझे मेरे यूनिवर्सिटी के अपडेट्स भी यहाँ से मिलेंगे. कॉलेज होगा तो कॉलेज के अपडेट्स भी मुझे यहाँ से मिलेंगे. एंड इट विल टेक मी टू ए पेज. सो हम हमारे जो क्लासमेट्स हैं, बैचमेट्स हैं, उनके साथ रिकनेक्ट कर सकते हैं बाय राइटिंग दिस. व्हेन वी आर राइटिंग दिस कंपनी का नाम, वहां पे भी सेम चीज है. I can go to Ample and all those who have written Ample in their profile, you can see Ample में वो लोग दिखेंगे आपको, जो भी लोग Ample से होंगे उनको. तो you can directly go to your company's page. So ये हो गया एजुकेशन का सेक्शन. Then comes license and certification. So I am certified PBA practitioner by Thomas, and उसका सर्टिफिकेशन है, तो मैंने वो इन्फॉर्म यहाँ पे डाला हुआ है. नाउ आई कैन ऑल्सो ऐड क्रेडेंशियल, जिसको जो सर्टिफिकेट का नंबर है, यहाँ पे वो ऑप्शन नहीं है कि मैं उसका फोटो डाल सकूं, तो आप उसका फोटो भी डाल सकते हैं. अगर आपका फोटो कहीं और है या तो आपका कोई वेबसाइट पे रजिस्टर है सर्टिफिकेशन, तो उसके लिंक को आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं. Then comes voluntary experience. जैसे आई वॉज ए चेयरपर्सन ऑफ विकासा व्हेन आई वाज डूइंग माय सीए. कुछ चीजें मेरे को अभी ऐड करनी है, तो लेट मी इन फ्रंट ऑफ यू ऐड दिस. कैसे ऐड करेंगे? सो जेसीआई जूनियर चेंबर इंटरनेशनल. सो आई एम अ मेंबर ऑफ जेसीआई. व्हाट इज द रोल? मेंबर. और I am a zone trainer, so I can write zone trainer. cause आप यहाँ से कॉज डिफाइन कर सकते हैं कि आप वो एनजीओ में कैसे सर्विस दे रहे हो. सो आई कैन राइट सोशल सर्विस और आई कैन राइट एजुकेशन. सो फॉर मी इट इज सोशल सर्विस.
आई एम करंटली वॉलंटियरिंग, अभी मैं कर रही हूँ. कब से कर रही हूँ? सो मे बी इट वॉज अप्रैल 2017 आई स्टार्टेड. सो आई सिलेक्ट 17, not April, it was February, and something about that organization. So right now I'm not writing description, वो बाद में आराम से सोच के लिखना है और उसको सेव कर देना है. So यहाँ पे दिखेगा आपको, you can see JCI zone trainer आपको दिख जाएगा. और कब से? So February 17. Now I have made a mistake. I am not zone trainer from 2017. And I recall that no, it is 2019, that to July. And यहाँ पे आ जाएगा एजुकेशन. सो जैसे ही हमें याद आता है हमें हमारे प्रोफाइल में चेंजेस करने हैं. अगर हम वो चेंजेस करेंगे that will help us because people consider this profile an authentic profile. अगर इसमें कुछ गलत लिखा तो that will not work. Then comes skills. लोग हमें ये स्किल्स एंडोर्स करते हैं, जो हमारे कनेक्शंस में होते हैं, हमें वो ये स्किल्स एंडोर्स करते हैं. तो जैसे निर्मल सर है तो उन्होंने मैनेजमेंट का स्किल मुझे एंडोर्स किया है और बाजू में लिखा हुआ आता है हु इज हाईली स्किल्ड एट दिस. और ट्रेनिंग, वो मुझे उन्होंने मेरे में ट्रेनिंग का स्किल है ऐसा उन्होंने मुझे एंडोर्स किया है. ये एंडोर्समेंट हमें लोगों से मंगवाने हैं, उनसे मांगने हैं. हम हमारे प्रोफाइल में जैसे ही नए स्किल ऐड करेंगे, यहाँ से ऐड न्यू स्किल्स, जैसे अगर सॉफ्ट स्किल मैंने ऐड किया तो जैसे ही मैंने सॉफ्ट स्किल ऐड किया वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा. एंड दोज हु आर गुड एट सॉफ्ट स्किल विल हेल्प मी टू एंडोर्स these skills. So if you see, these are the different skills जो मैंने ऐड करे हुए हैं मेरे प्रोफाइल के अंदर. एंड यहाँ पे जो नंबर्स आपको दिख रहे हैं वो एंडोर्समेंट है, कितने लोगों ने इसको एंडोर्स किया है. सो दीज मेनी पीपल हैव एंडोर्स डिफरेंट स्किल्स. जैसे सॉफ्ट स्किल अभी किया, टीम बिल्डिंग, पर्सनल मैनेजमेंट, ये सब अभी किया है, तो वो अभी हुआ नहीं है. बट मैक्सिमम परफॉर्मेंस मैनेजमेंट 37 people. So this is how we can have skills and endorsement. Now this will work better जब कोई हमारी प्रोफाइल स्टडी कर रहा होगा, वो सोचेगा कि हम इस बंदे को किस रोल के लिए लें, तो वो यहाँ से आइडेंटिफाई कर पाएगा, यहाँ से वो रेफरेंस भी जनरेट करेगा. सिंस कुणाल नागोडकर जिन्होंने टीम मैनेजमेंट के लिए मुझे एंडोर्स किया है, सो इफ द पर्सन वांट्स टू गेट इन टच विद दिस पर्सन, कुणाल जी के साथ वो टच में आएगा एंड दे विल इंक्वायर अबाउट. Or somebody for training, if somebody wants my review, तो they will talk to निर्मल sir and वो बोलेंगे कि आपने उनको ट्रेनिंग का स्किल एंडोर्स किया है, तो share the feedback. Now to adhere जो उन्होंने एंडोर्स किया है, what is one more step is to write a recommendation. जो हमारे कनेक्शंस में है वो हमें रिकमेंडेशन दे सकते हैं. So Ample has given me a recommendation, Nirmal sir has given me a recommendation, and there was one more person who has also given me a recommendation. ये क्वांटिटी होना जरूरी नहीं है, क्वालिटी होना जरूरी है. हम जिसके साथ काम कर रहे हैं या हमने किसी के साथ काम किया है वो हमें ज्यादा अच्छे से रिकमेंड कर पाएगा एंड हमें भी लोगों को रिकमेंड करना है. So for example, when it comes to given, so I have given a recommendation to a person whose name is Kunal Patel. He is a graphic designer. Initially, he was working with us, so I can recommend that person. या तो Sneha, she is currently working with us, so I have recommended her. So when somebody views Sneha's profile, they can see this recommendation. And what matters, I'll show you this कि किस तरह से हम recommendation को स्टडी करेंगे. अगर आप देखो तो दिखेगा कि कुणाल पटेल ग्राफिक डिजाइनर, उन्होंने उनकी कंपनी का नाम नहीं लिखा है, सो नो वरीज. 15th April 2020, ज्योति वाज अ सीनियर टू कुणाल बट डिड मैनेज डायरेक्टली. यहाँ पे जब हम किसी को भी रिकमेंड करेंगे तो वहां पे हमें ऑप्शन दिखेंगे कि आपका वो पर्सन के साथ कनेक्शन क्या था. लाइक फॉर एग्जांपल व्हेन इट कम्स टू स्नेहा, ज्योति मैनेज स्नेहा डायरेक्टली, so she is directly under me, she is reporting to me, so that's why I am directly managing her, and that's why I have written whatever I have written, and this should be visible to public. लोगों को पता चलना चाहिए.
In the same manner, what I have received. So let's say Nirmal sir का example लेते हैं. So he is a director at Ample Private Limited and he has managed me. So when he recommends me, it has a more weightage. So हमारे senior जब हमें recommend करते हैं on LinkedIn profile, people view that. So who can recommend us? Our seniors, our peer members, our juniors, our customers. हमारे वो लोग भी जो कहीं ना कहीं हमारे साथ टच में हैं. So they may be our suppliers, they may be our distributors, depending on our industry. You can ask for recommendations. So when we go to this and you start typing, जैसे ही आप टाइप करना शुरू करोगे तो आपके कांटेक्ट में जितने लोग हैं, you will start seeing those people. तो like for example, I know Komal Shah. She was my college student. She was with me when we were together doing our article show. So, and then यहाँ पे ये जो ऑप्शन आते हैं, कॉलेज कोमल मैनेज यू डायरेक्टली, कोमल रिपोर्टेड डायरेक्टली टू यू, so on and so forth, and we were students together. So कहाँ पे HMA and next. Hi Komal, could you write me a recommendation, or you can type more. It will help me to improve my LinkedIn प्रोफाइल. और आप ज्यादा भी लिख सकते हैं. अगर कोई सीनियर से आप बात कर रहे हो, सीनियर के लिए लिख रहे हो, तो यू कैन शो शेयर कि हम यहाँ पे साथ में थे, तो आप मुझे रिकमेंड करिए, एंड देन सेंड. नाउ इट हैज गॉन टू हर. शी विल फाइंड ए नोटिफिकेशन, उसको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा, एंड शी विल रिस्पॉन्ड टू दैट, एंड देन आई विल सी हर रिकमेंडेशन टू. सो दिस इज हाउ, जब जब भी हम किसी के साथ काम करते हैं तो हमें ये रिकमेंडेशंस, वी कैन आस्क फॉर द रिकमेंडेशन. पीपल मे नॉट नो, सो आप इस तरह से भी रिकमेंडेशन मांग सकते हैं. यू कैन सी एवरीबडी, जो भी लोग आपके कनेक्शन में होंगे वो सब यहाँ पे लिखेंगे. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज लाइक ए रेफरेंस. हमारे रेज्यूम का रेफरेंस होता है, ये वो है. उसके बाद अकम्पलिशमेंट्स है. आप लैंग्वेज अगर सीखते हो कोई, तो उसमें आप ऐड कर सकते हो English, Gujarati, Hindi and Kutchi. These 4 languages I can speak and write and read. So I have written that. If you learn some new languages, you can add so that people get to know about this. कुछ awards अगर आपको मिले हैं, कुछ ऑनर्स आपके साथ आपको मिले हैं, जैसे स्टूडेंट ऑफ द ईयर मिल गया है, या आपको गोल्ड मेडल मिला है, या आपको एम्प्लॉय ऑफ द ईयर मिला है, आपको कोई पर्टिकुलर दूसरा अवार्ड मिला है, तो यू कैन ऐड दोस अवार्ड्स हियर. दिस आल्सो विल ऐड को-करिकुलर एक्टिविटी के बाद हमारा अचीवमेंट का जो सेक्शन होता है सीवी में, उसके जैसा है. एंड देन योर इंटरेस्ट एरिया, आप कहाँ इंटरेस्टेड हो, तो आप जो पेज को, जो कम्युनिटी को लाइक करोगे, वो यहाँ पे दिखेगा. दिस इज योर प्रोफाइल. ये आपको बहुत अच्छे से बनाना है. आई एम गोइंग टू द पोस्ट नाउ, बट उससे पहले जरूरी ये था कि हम ये अच्छा बनाएं. नाउ अगर जितना अच्छा हम इसको बनाएंगे ना, तो हमें अलग से सीवी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज दी हुई है, और वो है, मोर में जाएंगे तो आपको दिखेगा सेव एज पीडीएफ. जैसे ही मैं इसको सेव एज पीडीएफ करती हूँ, तो ये यहाँ पे पीडीएफ डाउनलोड होगा, एंड इफ यू सी, मेरा पूरा प्रोफाइल बना हुआ है यहाँ पे आ गया. I really don't have to create a CV separately. जो मेरे LinkedIn में मैंने अच्छे से लिखा हुआ है, तो मुझे इस तरह से, आप देखिए, पूरा CV बना हुआ मिल जाएगा. Many times we struggle to create our CV. So हमें कुछ डिजाइनिंग की जरूरत नहीं है, हमें कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है. You can see everything written here
and this is the best way to create our CV. If anybody will match, हमारे CV को कोई मैच करेगा LinkedIn प्रोफाइल के साथ, तो वो एग्जैक्ट मैच निकलेगा. और यू कैन सेंड वाया मैसेज. आप यहाँ पे किसी को मैसेज भी भेज सकते हैं. सो प्रणव भाई करके हैं जो अभी पार्टिसिपेंट भी हैं. अब मुझे मेरा प्रोफाइल उनको भेजना है. आई हैव जस्ट सेंड इट और उनको मेरा लिंक्डइन प्रोफाइल पूरा मिल गया. इट इज इन द चैट बॉक्स. सो वी कैन डू दिस ऑल्सो. इट इज इजी. अगर हमें किसी को हमारा प्रोफाइल डायरेक्टली भेजना है, हम किसी को अप्रोच करना चाहते हैं, तो वी कैन डू दिस ऑल्सो. सो दिस इज क्रिएटिंग एन इफेक्ट. ये एक चीज हुई. दिस इज वन पार्ट ऑफ आवर प्रोफाइल. दिस इज फैक्ट्स एंड द फिगर्स. यहाँ पे कुछ जोल नहीं चलेगा, यहाँ पे कोई जुगाड़ नहीं चलेगा, यहाँ पे सब फैक्ट्स रहेगा. अब जो चीज आती है वो है कनेक्शंस एंड हमारे पोस्ट्स. जो हमारे पोस्ट एंड कनेक्शंस है उसके बारे में बात करेंगे. सो यू कैन सी दैट 500 प्लस कनेक्शंस. एंड इफ आई गेट इनटू दैट, मेरे लिस्ट में जितने भी लोग हैं वो मुझे यहाँ पे दिखेंगे. we have in LinkedIn first circle, second circle and third tier. So first tier, second tier and third tier. First is the one who are directly connected with us. जो जिन्होंने हमारे प्रोफाइल को लाइक किया है, हमारे साथ कनेक्शन में है. They can easily get in touch with us. Second, जिसको हमने लाइक किया है, जो हमारे कनेक्शन में, उनके कनेक्शन में जो है वो they comes in the second circle, second tier. And in third tier, people who are first person, second person, and वो second person के contact वाला जो बंदा है, that will come into third tier. So इतने contacts हमें automatically यहाँ से मिलते हैं. And if you can see, मेरे पास करीब 100 plus pages हैं. And if I go to the last page, I can see all my contacts. I can directly message these people. And आप कोई भी contact देखोगे ना, तो उसके पीछे ये first लिखा होगा. So मैं ऐड भी कर दूं ना, अप्लाई करके फर्स्ट एंड सेकेंड अगर दोनों, तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे कुछ में सेकेंड लिखा है, कुछ में फर्स्ट लिखा है. तो जो मेरे फर्स्ट टियर में है, आई जस्ट शो यू जूम करके. सो दिस पर्सन इज इन द सेकेंड टियर. सो नारायण एनर्जी लिमिटेड में कहीं ना कहीं कोई तो पर्सन होगा जिसके साथ मैं फर्स्ट कनेक्शन में हूँ. उसके कनेक्शन में अनुश्री देशपांडे इज देयर एंड दैट्स व्हाई शी इज इन माय सेकेंड टियर. सो सिर्फ और सिर्फ जो हमारे साथ है वो हमारे कनेक्शन में नहीं आते हैं. हम जिसके कनेक्शन में हैं, उनके कनेक्शन में जो लोग हैं और उनके कनेक्शन में जो लोग हैं, सब हमारे ग्रुप में ऐड हो सकते हैं. एंड दिस इज दैट्स व्हाई ए मल्टीप्लाइंग इफेक्ट. ये मल्टीप्लाइंग इफेक्ट बहुत हेल्प करता है. अब हमें चूज करना होता है कि हम राइट पर्सन के कनेक्शन में हो. सो वी हैव ऑप्शंस. व्हेन वी सर्च, हमारे पास यहाँ पे ऑप्शंस होते हैं कि किस तरह से सर्च करना है. लोगों से सर्च करना है, जॉब से सर्च करना है, कंपनी से करना है, स्कूल से करना है, या कोई ग्रुप से करना है. सो हम अकॉर्डिंगली कंटेंट से भी सर्च कर सकते हैं. सो आप यहाँ पे आपके हिसाब से सर्च कर सकते हैं. जैसे मुझे चाहिए एचआर मैनेजर. तो मेरे कनेक्शन में अभी इतने लोग एचआर मैनेजर के डेजिग्नेशन वाले हैं. सो मुझे ये लिस्ट मिल गया एंड आई कैन डायरेक्टली गेट इन टच विद दीज पीपल. दीज आर देयर इन माय लिस्ट. ये अभी मेरे लिस्ट में है इसलिए. एंड मैं उसमें लोकेशन भी डाल सकती हूँ. सो दीज आर द फिल्टर्स. मुझे सिर्फ और सिर्फ मुंबई के लोग चाहिए. मेरे जो जो कनेक्शन थे उसमें से मुंबई में हो और एचआर मैनेजर हो, वो कितने लोग हैं. सो आई कैन सी दिस लिस्ट. आई गो टू होम. वन सेकेंड. So, यहाँ पे जब सर्च करेंगे और यहाँ पे जब हम कंपनीज में जाएंगे, रादर पीपल, जैसे ही हम सर्च में पीपल में गए,
तो हमें यहाँ से सजेशन दिखना शुरू होगा और हम ये सजेशन के हिसाब से कॉन्टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। ये सजेशंस कहाँ से आएंगे? ये सजेशंस आपके कंपनी से आ सकते हैं, आपके जो इंटरेस्ट एरिया है वहां से आ सकते हैं, आपका जो जीमेल अकाउंट जिसमें आपने या तो कोई भी ईमेल आईडी जिसके साथ आपने इसको लिंक किया है, अगर उसके कॉन्टैक्ट्स भी होंगे, हमारे फोन के जो कॉन्टैक्ट्स होंगे उसको भी ये सर्च करेगा एंड यू कैन सी ऑल द कॉन्टैक्ट्स हियर। नाउ गोइंग टू होम, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है अब जब हमारी प्रोफाइल अच्छी है, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो आता है वो ये है कि हम अच्छे से पोस्ट लिखें। वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज टू बी अपलोडेड ऑन लिंक्डइन प्रोफाइल इज ए फॉर्मल बिजनेस, ऑफिशियल बिजनेस एंड नथिंग बियॉन्ड। हमारा बिजनेस की बात से अलग कुछ चीज नहीं होनी चाहिए। दिस इज नॉट फेसबुक वेयर वी कैन पोस्ट ऑल आवर सेल्फीज, all our visits, all our activities. No, this is a formal platform and that's why हम जब पोस्ट लिखते हैं तो हम यहाँ पे हमारे इवेंट्स डाल सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैंने कोई सेशन किया है, जैसे मैंने अभी एक सेशन की डिटेल डाली थी, आई वांट टू जस्ट ऐड वन, मेरे को मेरा एक जो वीडियो है कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट वाला, वो वीडियो ऐड करना है यहाँ पे, मुझे उसके पोस्ट डालने हैं। सो आई गो टू द फोल्डर all files and conflict management का वीडियो and add। तो जैसे ही मैंने वो वीडियो ऐड किया, यहां से वो इमेज पूछ रहा है। एक सेकेंड। एक सेकेंड, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। सो आई एम ऑन माई होम पेज। ये होम के अंदर आप पोस्ट में गए, आपने आपके पोस्ट के हिसाब से आपको इमेज ऐड करनी है, आपको वीडियो ऐड करना है। यू गो टू वीडियो ऐड, वो 10 मिनट से बड़ा है तो what I can do is I can share the link that I have. You can attach article that you have written, and when we add photograph, and you start typing next। so हम यहाँ पे टाइप कर सकते हैं एंड वो टेक्स्ट मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे एक रेडी टेक्स्ट है कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। सो वो टेक्स्ट आई एम टेकिंग एज इट इज, कॉपी कर लिया और यहाँ पे पेस्ट किया। अब पूरे ही कंटेंट आ गए। उसके बाद यहाँ पे नीचे मैंने एक वीडियो का लिंक जो यूट्यूब पे ऑलरेडी है वो डाल दिया है। एंड इन लिंक्डइन प्रोफाइल व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज टू रीच आउट टू मोर पीपल इज हैशटैग। हम सबको हैशटैग पता है। आप बिकॉज इट इज ऑन कॉन्फ्लिक्ट, व्हाट आई कैन ऐड इज हैशटैग कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। जैसे ही हम लिखना शुरू करेंगे ना, हमें यहाँ पे नीचे सजेशंस आना शुरू हो जाएंगे। यू कैन सी द सजेशंस हियर and start typing one more time। so conflict, then people skills, relationship, so on and so forth। इस तरह से मुझे जितने भी hashtags चाहिए I can add and then post।
हम जैसे ही पोस्ट करेंगे इट विल बी रिफ्लेक्टेड इमीडिएटली एंड आप उसको देख पाएंगे। नाउ व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज हम वीक में 3 से 4 पोस्ट लिंक्डइन पे करें। एक वीक में 3 या 4 पोस्ट होना बहुत जरूरी है, so that our profile gets updated every time. People have something new to see on your profile, and this is how we build. One more thing that we write, there are people who write well, जो बहुत अच्छा लिखते हैं देख, और यहाँ पे थोड़ी लिमिटेशन रहती है इन टोटल राइटिंग की। तो उसका एक बहुत अच्छा ऑप्शन ये है कि हम लिंक्डइन में आर्टिकल्स लिख पाए। सो वी कैन राइट आर्टिकल्स, जहां पे हम एग्जैक्टली ब्लॉग लिखते हैं उसी तरीके से आर्टिकल्स लिख सकते हैं। सो यहाँ पे आप इमेज डाल दीजिए अबाउट द आर्टिकल, हेडलाइन ऑफ द आर्टिकल। सो एज आई सेड, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट पे मैंने आर्टिकल लिख दिया, मैंने वो इमेज ले लिया, एंड देन आई राइट एवरीथिंग दैट आई वांट टू राइट, वो मैंने नीचे लिख दिया। एंड देन इफ आई पब्लिश, it will be published as an article. Now this also is an important factor. अगर हम कुछ करते हैं, अच्छा करते हैं, हम अगर कुछ लिखते हैं तो उसको इस तरह से पब्लिश करना, हमारे आर्टिकल्स कितने पब्लिश हुए, that is also an added value to our profile. This is very important. So आई थिंक दिस इज ऑल दैट आई वांटेड टू शेयर। हम हमारी प्रोफाइल किस तरह से अच्छी बना सकते हैं। सो व्हाइल इवैल्यूएटिंग आल्सो वी शुड इंश्योर एवरीथिंग लाइक दिस। हम किसी की प्रोफाइल जब इवैल्यूएट करते हैं तब भी हम यही सारी चीजों की का ध्यान रखेंगे कि उन्होंने काम क्या किया है, कहाँ कहाँ काम किया है, कितने टाइम पे काम किया है। जस्ट शो यू वन थिंग, जब हम रिक्रूटमेंट करते हैं तो एक चीज देखते हैं कितना उसका टाइम ड्यूरेशन है। सीवी में जो टाइम ड्यूरेशन आता है वो, और यहाँ लिंक्डइन के प्रोफाइल पे जो टाइम ड्यूरेशन आता है, लाइक विद एम्पल आई एम 6 years and 4 months, since last 6 years I am with Ample, so this proves my loyalty for the organization। अब इस तरह से भी लोग इवेल्युएट करते हैं। so this is very important to update every time। I want you to now share your queries, questions। आपको और एक्सप्लेनेशन चाहिए और कुछ जानना है या कहीं पे क्वेरी आ रही है तो यू कैन शेयर योर क्वेरीज। either you can write down in the chat or you can ask, अनम्यूट करके आप मुझे पूछ सकते हैं। ज्योति मैम, कैन आई नील अय्यर? यस सर। अरे मैम, एक्चुअली एक क्वेरी है, एक क्वेरी ऐसा है कि हम जब हमारा प्रोफाइल देख रहे हैं तो एक ऑप्शन जो आपने दिखाया स्किल एंड एंडोर्समेंट, करेक्ट? स्किल एंड एंडोर्समेंट, यस। एजुकेशन के नीचे। हाँ। अब उसके नीचे आपके प्रोफाइल में बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, बट आई कैन सी कि मेरे प्रोफाइल में ये नहीं आ रहा है। सो व्हाट इज द इशू? ऑप्शन नहीं है, ये मेरे स्किल्स एंडोर्समेंट है। ये मैंने यहाँ से जो ऐड किया है ना, दिस इज द एडिंग फैक्टर। यहाँ से हम जितने स्किल्स ऐड करेंगे ना, यू कैन सी शो मोर, तो उसमें हम जितने ज्यादा स्किल्स ऐड करेंगे उतने सारे ही स्किल्स यहाँ पे दिखेंगे। ओके। ये ऐड करेंगे तब होगा, ऑटोमेटिकली नहीं आएगा। एंड दिस इज न्यू फीचर दैट टेक ए स्किल क्विज। आप ये कर सकते हो, एक क्विज आता है और ये लिंक्डइन ड्रिवन है, तो आप आपके एरिया के हिसाब से यू कैन टेक दैट एंड उसका रिजल्ट यहाँ पे शो होगा एंड दे विल ऑथेंटिकेट योर स्किल्स। बट ये जो मेरे स्क्रीन पे दिख रहा है अभी, इतने सारे स्किल्स जो मैंने एंडोर्स किए हैं अपने लिए एंड लोगों ने फिर उसको कहीं ना कहीं से एंडोर्स किए हैं। पहले मैंने अपने स्किल्स को यहाँ पे लिखा है। ओके। It's like telling about myself that I know business strategies also। जब तक मैं वो बोलूंगी नहीं तब तक लोगों को कैसे पता चलेगा कि उनको मुझे ये स्किल को एंडोर्स करना है कि नहीं। So listing down our own skills। Done, ma'am. Thank you। Jyoti Ben, an important question. I would like you to take it. A student Yes, is sir. asking, what about students' perspective? Even I have been watching this
presentation. It's an excellent presentation, but more focus on the people who are already, let us say, in the job, and then they are trying to project their profile in some better way. So for students, can you please add some points? Yes. So all that I have said is same important. It has the same importance. अगर student है तो भी उसका कुछ ना कुछ तो competence रहेगा. So instead of, let's say for example, writing here, I'll just show you कि senior manager at Ample Private Limited, they can write student is like first year student, second year student, third year student with the college का नाम and university का नाम वो यहाँ पे आ जाए. That is first thing that they can do to show that where they are studying. Number two, we can write about ourselves. जब हम fresher होते हैं और हमारा CV जब हमें बनाना होता है तो हमें अपने बारे में जो लिखना होता है, where we are good. So how can you describe yourself? वो आपको यहाँ पे about में लिखना है. Even today when we are students, we do so many things. हम बहुत सारी can we apply for internship? You can write that you are open for internship and LinkedIn पे काफी सारे ऐसे request आते हैं कि जिसको भी internship करना है, they can enroll. So if you are regular on LinkedIn, you will see these kind of posts also. आपने जो create किया है, जैसे आपके projects हैं, जैसे कुछ short films बनाते हैं, कभी कभी participate करते हैं, तो कुछ presentation है that you can show here. When we are students, we have these things to show. हम जब internship में project बनाते हैं, तो वो project यहाँ पे कर सकते हैं. Engineering students, they create their own projects, जिसको आप कहीं पे Google Drive पे upload कर दीजिए और उसके link यहाँ पे share करिए. Activities, तो आपका LinkedIn का activity है, यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं. Now, this is one area which you will not fill up, experience वाला. यहाँ पे तभी शुरू होगा जब आप internship चालू करोगे. So from the internship point of view, you can write that. अगर आप internship कर रहे हो तो, but the rest of the things तो as it is रहेंगे. Education आपने जो complete कर लिया है वो लिखिए. Certification अगर आपको मिला है तो ठीक है, नहीं मिला है तो कोई बात नहीं. हमें बहुत सारे सर्टिफिकेशन ऐसे भी मिलते हैं जब हम एलोक्यूशन कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं एंड रिनाउंड ऑर्गेनाइजेशन, या तो हम स्पोर्ट्स में हैं, या तो हम कोई कल्चरल एक्टिविटीज में हैं, या हमने कोई ऐसी वर्कशॉप अटेंड की है, तो वो सारे सर्टिफिकेट यहाँ पे डाल सकते हैं. काफी सारे लोग यूआरआई से हैं, यू आर यूआरआई एम्बेसडर्स. नाउ दिस इज वन मोर प्लेस वेयर यू कैन शेयर कि मैं यूआरआई में एम्बेसडर हूँ, तो आप यहाँ पे वॉलंटरी एक्सपीरियंस में यूआरआई का नाम ऐड कर सकते हैं. Now the skill set, again, it is not necessary that मेरे को कंपनी में होना जरूरी है. ये स्किल सेट्स हमारे सॉफ्ट स्किल्स हैं, बिहेवियरल स्किल्स हैं. सो हम कॉलेज में भी इन सारे स्किल्स को एक्सपीरियंस करते हैं. सो हमें जो लग रहा है हम यहाँ पे उनको ऐड कर सकते हैं. Who can recommend us? Our seniors, in the sense हमारे प्रोफेसर्स, हमारे टीचर्स. हम इंटर्नशिप करते हैं तो वहां पे हमारे सीनियर्स, इवन आवर फ्रेंड्स, those who have worked with us, they also can recommend us. So from students perspective, this is how we build profile. These are normal things, accomplishment वगैरह. So I think Patel sir, what I think is only one section जो experience का है, वो section पे ही हमारे पास कुछ नहीं होगा लिखने के लिए, but apart from that we have everything to write. Thank you very much. I think it is answered well, Jyoti Ben. There is a question by Ashwin Pitra. I'll check out the questions, the rest of the questions. જ્યોતિ મેમ, हाँ એક સવાલ છે, પૂછી શકું? हाँ हाँ sure. ઓકે મેડમ, આપણે ધારો કે કોઈ પર્ટિક્યુલર વ્યક્તિને કે પર્ટિક્યુલર કોઈ કંપનીને સર્ચ કરવી હોય કે એમાં કયા કયા એમ્પ્લોય છે, એમાં જે આપણને હેલ્પ કરી શકે, અથવા પર્ટિક્યુલર વ્યક્તિ તો જે આપણા ગ્રુપમાં નથી, કારણ કે તમે અત્યારે જે કીધું છે એ તમારા ગ્રુપમાં હોય એવા વ્યક્તિઓનું કીધું છે. ના, આપણે જ્યારે નોર્મલ હોમ પેજ પર હોઈએ ને, હા, આ હોમ છે અત્યારે, રાઈટ, ઓન ધ સ્ક્રીન. હવે અહીંયા તમે કોઈ પણ કંપનીનું નામ ટાઈપ કરો, યુ સે એની ઓફ ધ નેમ, લાઈક ફોર એક્ઝામ્પલ ધારો કે તમારું એચઆર મારા માઇન્ડમાં પહેલું નામ યુપેન આવે છે, સો હું યુપેન સર્ચ કરું છું.
જેવું મેં નહીં, લ્યુપિન લખ્યું ને હા તો અહીંયા મને લ્યુપિન દેખાઈ જશે અને આઈ કેન સી લ્યુપિનમાં જઈને અહીંયા ઓપ્શન છે પીપલ. બરાબર. Okay, so if I go to people, I will see the people who have written Lupin in their profile. જેટલા એ પણ લખ્યું હશે એ બધા નીચે આવી જશે. And if I want to connect with these people, I can connect. Even one more thing for the students, આવી રીતે જ્યારે આપણે સર્ચ કરીએ છીએ ત્યારે એક બીજી વસ્તુ ખબર પડે છે કે લ્યુપિનમાં એ લોકોએ જો કોઈ જોબ પોસ્ટ કરી છે LinkedIn પર તો એ અહીંયા દેખાશે. So they have jobs, front desk officer, walk-in interview in Ankleshwar, API manufacturing માટે, executive operational excellence ની પણ ઓપનિંગ છે. આવી અલગ અલગ ઓપનિંગ જે એ લોકોની છે એ અહીંયા દેખાશે. એટલે પર્ટિક્યુલર જેમ So, તમે HR Jyoti ma'am, I have a question. એક સેકન્ડ, એક જ સેકન્ડ. આની પહેલા જે મારી સાથે વાત કરતા હતા આઈ ફોરગોટ ધ હા નેમ. હા સર મેડમ એટલે મારે કહેવાનું હતા કે તમે જેમ HR વાળાનું તમે કીધું કે HR વાળા ફક્ત બોમ્બે હોય. હવે ધારો કે આખું એક કોમ્યુનિટી કે જે HR માં કામ કરતું હોય અને જે તમારામાં નથી એ પણ આવી રીતના આવી શકે કે HR કલકત્તાના જે હોય જે તમારા પ્રોફાઇલમાંય ના હોય એ બધાનું આવું લિસ્ટ કે એવું ના? હા આવી શકે ને. એટલે હું HR મેનેજર ટાઈપ કરું, જેવું મેં HR મેનેજર ટાઈપ કર્યું એટલે મને અહીંયા રિઝલ્ટ શો કરે છે 4965002 રિઝલ્ટ્સ. હવે એવું Okay. બને કે આમાં મારા કોન્ટેક્ટ વાળા પણ હોય અને કોન્ટેક્ટ વગરના પણ હોય. તમે જોઈ શકો છો બાજુમાં લખેલું છે સેકન્ડ ટિયરમાં છે, થર્ડ ટિયરમાં છે અને આગળ જતા એવા પણ આવે. નીચે પેजेस દેખાશે તમને ઘણા બધા, 100+ પેजेस છે. તો લાસ્ટ પેજ પર ક્યાંક જઈએ તો એવા પણ લોકો હોય કે જે મારા કનેક્શન્સ બહારના છે અને આવી કમ્યુનિટી પણ સાથે આવી જાય જે HR ની કમ્યુનિટી બનાવેલી હોય. સો આપણે નોર્મલ જે સર્ચ કરીએ છીએ ને એના જેવું સર્ચ આમાં જ નાખવાનું. આપણને જે પોઝિશન જોઈતી હોય એ પોઝિશન થી નામ નાખીએ તો આવી જાય. ઓકે નાઇસ, થેન્ક યુ મેમ. યસ. Jyoti, my question is, are we able to see only profile who are open to see public, no? Or any, I mean, No, we will be in a position to see the profiles which are open for public. That is number one. Number two, Yeah. if you are in the connection with that person, you can still see the person's profile. right? No, I mean, if people are making such kind of search, I mean, unknown people, as Yes. some participant mentioned, like they want to have like HR manager randomly or any like, you know. Yeah. So those profile we can see only if they are open to public. Correct. Yes, sir. Yes, ma'am. So, Okay, जो भी profiles यहाँ पे आई हैं, whatever profiles we can see here, either they will be in my connection or they are open for public. Then only I will be in a position to see. Yes. Right. Thank you. હેલો મેમ, ગુડ ઇવનિંગ મેડમ. પેજ ફોલોવર જોવા હોય તો Yes. પેજ બનાવીએ એમાં ફોલોવર જોવા હોય તો દેખાય? Page बनावे में followers જોવા હોય હા તો તમારે તમારા પ્રોફાઇલમાં જવાનું હા and in the profile you can see activity માં તમને manage followers નું ઓપ્શન છે અને અહીંયા તમને નીચે followers દેખાય છે. ઓકે ઓકે If you, થેન્ક યુ. right, so here you can have followers અને manage followers માં જાઓ તો તમને દેખાશે કે કોણ લોકોને તમે ફોલો કરો છો, કેટલા લોકો તમને ફોલો કરે છે અને તમે કેટલા લોકોને ફોલો કરો છો. So ઓકે 2527 are following and I am following people and 2473 people are followers. They are my followers. This is ઓકે how we can see. ઓકે થેન્ક યુ મેડમ. Can you please show again how to publish article? In the post you can see start a post. एनी नीचे उसके नीचे write in article लिखा है on LinkedIn. आप जैसे ही वहां पे क्लिक करोगे ना तो you will be taken to a next tab, new tab, और new tab में आपको blank page ही मिल जाएगा. It's a normal page. You can start writing whatever you want to write. So it's a normal page. जैसे हम word में लिखते हैं उसी तरह हम यहाँ पे लिख सकते हैं. So this is how we can write and then we have to publish. Publish करेंगे तो immediately वहां से दिख जाएगा. It will be seen on your profile.
The recording of the webinar you have to talk to Yuvalai. I think they will put it on the YouTube. Ashwin ji, Ma'am, can I you don't know. explain what is first, second, and what third layer? What? Sorry? Can you explain what is first, second, or third layer? First, second, and third. Yeah. All right. So when we have connections, हमारे जो connections होते हैं, आप देखेंगे यहाँ पे जिन लोगों ने भी कमेंट किया है, what is reflected on my wall, विजय प्रवीण महाराजन, और बाजू में दिख रहा है second. You can see the second. Now this second means this person is in connection with someone who is in my first circle. Now first circle is the one जो मुझे यहाँ पे डायरेक्ट मेरे नेटवर्क में है, जिनको भी हम यहाँ पे एक्सेप्ट करते हैं, जिनके इनविटेशन हम एक्सेप्ट करते हैं. सो आई हैव समबडी परेश मोड़ा, अगर मैंने इनको एक्सेप्ट कर लिया तो दिस पर्सन विल बी इन माय फर्स्ट कनेक्शन. और जैसे ये मेरे फर्स्ट कनेक्शन में आएंगे, इनके कनेक्शन में जो लोग हैं वो सेकेंड कनेक्शन में आ जाएंगे, एंड उनके कनेक्शन में जो होंगे वो मेरे थर्ड कनेक्शन में आ जाएंगे. दिस इज फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड. Okay, madam. Thank you. Right? और if you, जैसे अभी एक स्क्रीन ओपन है, you can see contacts 9,969. These are the contacts which are related with my email ID. So यहाँ से अगर हम इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मेरे गूगल के साथ जितने भी लोग हैं वो यहाँ से मुझे दिखेंगे. So if I want to connect with this person who is there in my phone book, तो मैं यहाँ से कनेक्ट कर सकती हूँ. I can connect, send an invitation, they will accept my invitation and we will be in connection. तो हमारे फोन में जितने लोग हैं उनके साथ भी हम इस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं. What can we write in experience for students? MSU में एक चीज चलती है बिजनेस बाजीगर, जो मुझे पता है. ऐसे बहुत सारे इवेंट्स होते हैं. सो योर पार्टिसिपेशन इन सच इवेंट, ऑर्गेनाइजिंग ए कॉन्फ्रेंस, वर्कशॉप, या तो आपने कोई इस तरह से इवेंट ऑर्गेनाइज किया है, इफ यू हैव पार्टिसिपेटेड समवेयर वेयर टीम वर्क, टीम बिल्डिंग, लीडरशिप, स्ट्रैटेजीज, ऐसे सारे स्किल्स का जहां पे यूज होता है, वो सारी इवेंट्स को आप एक्सपीरियंस में लिख सकते हो व्हेन वी आर स्टूडेंट्स. Which post is more preferably from your aspect? From my aspect, there are two types of posts that we can post. One, our own thought process. हमारे thoughts हम LinkedIn पे share कर सकते हैं, which are related to industry. And number two, कहीं से हमें अच्छा आर्टिकल मिला है तो वो आर्टिकल को भी हम शेयर कर सकते हैं with the reference कि हमें ये आर्टिकल कहाँ से मिला है. Both will work, both will help. मैम पेज विजिटर જોવા માટે हाँ, હાઉ ટુ ચેક ધ પેજ વિઝિટર એમાં નથી દેખાતું. કોઈ કે પેજ વિઝિટ કર્યું હોય એમાં. सॉरी મને સંભળાયું નહીં, થોડુંક મોટેથી બોલજો. LinkedIn પર આપણે જે પેજ બનાવીએ ને પ્રોફાઇલમાં, એ પેજ કોઈ વિઝિટ કર્યું હોય એ કેવી રીતે ચેક કરવાનું? એ પેડ વર્ઝનમાં આવે છે. વ્યૂ યોર હુ હેઝ viewed your profile, એ પેડ વર્ઝનમાં આવે છે, એ ફ્રી વર્ઝનમાં નથી આવતું. ઓકે ઓકે ઓકે. સો અહીંયા તમને એ ઓપ્શન આવે છે who viewed your profile. આ જે ઇનસાઇટ નું ઓપ્શન તમે જુઓ છો અહીંયા, visit more LinkedIn products, this works with the paid version and here we can see કેટલા લોકોએ આપણા પ્રોફાઇલ ને વ્યૂ કર્યું છે, but it is paid version. Madam, do you have an idea how much they are costing for that? એક સેકન્ડ. અને આના ઓપ્શન્સ છે કે તમને કેવી રીતે પેડ વર્ઝન લેવું છે. જોબ સર્ચ કરવા માટે આ જે 4-5 ઓપ્શન છે અને એક્સપ્લોર ઓલ પ્લાનમાં જશો તો યુ કેન સી એવરીથિંગ. યુ કેન સિલેક્ટ ફોર કરિયર, તમારા બિઝનેસના ગ્રોથ માટે, સેલ્સની ઓપોર્ચ્યુનિટી માટે કે હાયરિંગ માટે. સો આમાંથી તમે કોઈ પણ એક ઓપ્શન સિલેક્ટ કરો. તમારી પ્રોફાઇલ હશે ને એ પ્રોફાઇલમાં I'll just show you.
ક્યાં છે આ વસ્તુ જ્યાંથી તમે એક્સપ્લોર કરી શકો છો. ટ્રાય પ્રીમિયમ ફ્રી ફોર 1 month. આવું એક ઓપ્શન આપણને અહીંયા આવે છે ઉપર, અને અહીંયા તમે ક્લિક કરશો ને તો યુ કેન સી ઓલ ધ ઓપ્શન્સ. We can endorse, we can request for endorsement, we can request for recommendation. Endorsement માટે રિક્વેસ્ટ નથી કરવાની, રેકમેન્ડેશન માટે રિક્વેસ્ટ કરવાની છે, અને એ આપણે એક્ઝિસ્ટિંગ અને નવા બંને લોકોને કરી શકીએ છીએ. એન્ડોર્સમેન્ટ ઓટોમેટિકલી એ લોકો આપણને કરે. અત્યાર સુધીનો રેકોર્ડ એવું કહે છે કે LinkedIn is a safe platform, and that's why there are no harms as long as we are sharing our professional information. અહીંયા આપણે કોઈ સેલરીની ડિટેલ્સ નથી શેર કરતા, અહીંયા કોઈ બેંક ડિટેલ્સ શેર નથી કરતા. We are talking about our profile in the same manner the way we create our profile in naukri.com કે એવા જે પણ જોબ પોર્ટલ્સ છે એમાં જેવી રીતે આપણે પ્રોફાઇલ બનાવીએ છીએ એવી જ આ પ્રોફાઇલ છે, અને એટલા માટે it is comparatively safe, but social media in a way is taking a chance. It can always be hacked, and there is nothing secret or nothing private in social media. So it is up to us કે કેટલું શેર કરવું છે. Can I post my school college pictures? No, unless they are of an achievement. કોઈ મેડલ મળતું હોય, કોઈ ટ્રોફીઝ મળી હોય, કોઈ સર્ટિફિકેશન હોય તો કરી શકાય, but otherwise just photographs, no. Yes, field work is considered as experience for students. How to look for projects related links? સર્ચ કરવાના કીવર્ડ્સ, જે પ્રોજેક્ટ માટે તમારે કામ કરવું હોય એના કીવર્ડ્સ તમે અહીંયા સર્ચ કરો તો તમને એ કીવર્ડ્સના હિસાબથી કામ ખબર પડી જાય. Can we request for endorsement for existing skills and new connected members? I have already responded to this. Can we add multiple websites for? Yes, we can. Here we have two options. One is a personal and one is another. So we can add more websites. Thank you, Mahendraji. Anushri Wagela. If we want to apply for internship, then how can we do it? Hello. As I shared here, that if you go to Lupin, you can see jobs. Here you can see. So in a way, हम जब यहाँ पे सर्च करते हैं तो जॉब्स का भी ऑप्शन होता है. If you can see this, jobs. And जैसे ही हम जॉब्स में टिक करेंगे ना तो हमें जितने भी जॉब्स अवेलेबल होंगे वहां पे इंटर्नशिप भी आ जाएगा. दिस जो टाइटल्स हैं वहां पे हमें इंटर्नशिप वाले टाइटल्स भी मिलेंगे. इट डिपेंड्स ऑन योर प्रोफाइल. आप किस तरह से प्रोफाइल बनाते हो, आप किस तरह से सर्च करते हो. सो इफ आई राइट internship trainee, I can see things here. क्योंकि मेरा प्रोफाइल उस तरह का है नहीं तो मुझे शायद इंटर्नशिप दिखे ना, या तो मुझे कुछ जो दिख रहे हैं. आई हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक क्योंकि यहाँ पे यूएस आ गया है. If I write India, I can see that internship programs are going in these companies. So I can search it out. Possible hai. Ma'am, I have a question. Yes. આપણે કનેક્ટ કરીએ બધા સાથે, મીન્સ HR જે મોટા મોટા હોય એમની સાથે આપણે કનેક્ટ કરીએ ઇન કેસ, તો એના પછી આપણે એમની સાથે વાત કરવી તો મેસેજમાં આપણે અપ્રોચ કરવાનું કે પછી જસ્ટ કનેક્ટેડ જ રહેવાનું? પહેલા એક વખત એમને મેસેજ મોકલવાનો કે આઈ વોન્ટ ટુ ગેટ ઇન ટચ વિથ યુ, કયું પર્પસ છે એ મેસેજમાં ક્લેરિફાઈ કરવાનું. લાઈક ફોર એક્ઝામ્પલ જો તમે અહીંયા જોશો તો અહીંયા ઓપ્શન અહીંયા છે ઘણા લોકો આવી રીતે. મને પહેલો મેસેજ આવ્યો હતો એક ભાવિનભાઈ કરીને છે જે ગ્લોબલ એન્ટરપ્રેન્યોર છે, અને એમનો એક મેસેજ છે કે એમને મારી સાથે બિઝનેસ ઓપોર્ચ્યુનિટી
માટે કઈ ડિસ્કશન કરવું છે તો એમણે પહેલા મને બધી ઇન્ફોર્મેશન મેસેજમાં મોકલી આપી અને પછી અમે લોકોએ કોન્વર્સેશન ચાલુ કર્યું અને ગ્રેજ્યુઅલી અગર એ મોબાઈલ નંબર આપણી સાથે શેર કરે તો વી કેન ગેટ ઇન ટચ વિથ ધેમ ઓન ફોન. આપણે એમની સાથે વાત પહેલા કરી લેવી પડે કે શેના માટે આપણે કનેક્ટ થવું છે. અચ્છા, સો ઓકે. આઈડિયલ ઇઝ LinkedIn ના મેસેજ પર પહેલા એક વખત મેસેજ મૂકવો. ઓકે, થેન્ક યુ મેમ. LinkedIn has a limitation that we cannot create profile of a company. It is an individual's platform, and that's why creating a profile of a company is not possible. We have to create a page of a company. So company નું page બનાવવાનું હોય. જેવી રીતે if you can see this ample આ ample નું page છે. So ample નું page હોય, જ્યોતિની પ્રોફાઇલ હોય. એમ્પલની પ્રોફાઇલ ના બની શકે કારણ કે આ લોકોની પ્રોફાઇલની વાત છે અહીંયા એટલા માટે. Thank you. I think there are no more questions, or if you have, I am just sharing my contact details. You can get in touch with me. Here you can scan this QR code and all the information will be there. Or you can take a photograph of this and you can connect with me. On my LinkedIn profile, it is Jyoti Maru, JYOTEEMARU. I am writing my number and email ID in the chat box. Thank you. Over to Chinmay. Thank you, Jyotiben. I thought let me first thank. It was a very detailed, very informative. It was Thank you, sir. very useful session. And practical demo સાથે તમે બતાવ્યું. So it was not just talk on this is what you can do. So wonderful learning would happen through this kind of an approach. I personally, I feel I may not need so much of LinkedIn, but when I looked at your presentation or when I was listening to it, I could see a very useful thing even for a person like me. But more than me, if I'm able to help somebody, let's say having understood few things, especially the students who want to enrich their LinkedIn profile or want to start something, I think before we send to you expert, a few things definitely I can advise and hopefully help him to really get into the LinkedIn. So thank you very much. You have been always very, very helpful to ULI, and we always look forward to your help. Thank you very much. Over to you, Thank you, Chinmay, sir. if you are there. Thank you. Thank you, Jyoti madam, on behalf of ULI. Just sir rightly concluded, it is definitely a useful session, and more features were seen apart from only usually maybe students might be looking at what type of photo we can upload or what to write in experience, but there are many more features which needs to be seen also. And lastly, that along with some other social medias like Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, the importance of LinkedIn. So by attending this session, even we understood that even this social media is really, really important. So we all must go towards this media also. Thank you.